moments stay in our hearts. A joyful day as it now starts. Every celebration becomes more meaningful when it is wrapped in love, blessed by the presence of those who guide us through life. With immense joy and great pleasure, a heartfelt morning to our Reverend Sister Manager, esteemed Sister Principal, all our loving sisters, honored guests, beloved grandparents, respected teachers, and dear parents. I am Fatma. And I am Afi. On behalf of entire St. Mary's family, feel privileged and honored to welcome you all to this beautiful celebration of St. Anne Feast. जिंदगी हमें चलना सिखाती है, मगर बुजुर्ग हमें संभल कर चलना सिखाते हैं। उनकी हर बात तजुर्बे की किताब का एक नया सफ़ा होती है और उनकी हर दुआ मुश्किल राहों को भी आसान बना देती है। क्यों ढूंढूं मैं उसको मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में, जब मेरे साथ मेरा रब रहता है, बगैर उसके तो हर आशीर्वाद अधूरा लगता है। पूरे सम्मान और सत्कार के साथ हम अपने प्यारे सभी ग्रैंड पेरेंट्स का हार्दिक स्वागत करते हैं। Today is not just another day on our school calendar. It is a day to celebrate the values that shape our lives: faith, love, compassion, and family. As we gather to celebrate this beautiful occasion, let us remember the significance of Saint Anne, the beloved mother of Blessed Virgin Mary and grandmother of Jesus Christ. Saint Anne is honored as the model of a loving, caring, and faithful grandmother. Through her life of prayer, wisdom, and unwavering faith, she nurtured the values that were passed on to the future generations. Her life journey reminds us that grandparents are not only the keepers of family traditions but also the first teachers of love and empathy. They are the hands that held us before we could walk, the voices that comforted us before we understood words, and the hearts that continue to pray for us every single day. Their blessings are the greatest treasure we can ever receive, and their presence fills every home with love and happiness. Today, as we celebrate the feast of Saint Anne, let us take a moment to express our love and gratitude to our Reverend Sisters who belong to the congregation of the Sisters of Saint Anne. Inspired by the life and virtues of Saint Anne, they dedicate themselves to serving God and humanity with love, compassion, and unwavering faith. With hearts filled with gratitude, respect, and love, we honor our beloved sisters who faithfully carry forward the legacy of Saint Anne through their lives of prayer, warmth, and selfless service. With immense respect and great pleasure, we welcome our Reverend Manager, Sister Leena Ma Matthew. I would like to invite our school head girl, Shri Singh, along with the little angel, to present a floral welcome as a token of love. With hearts full of gratitude and respect, we warmly welcome our esteemed school principal, Sister Tissy Sebastian. I request our school secretary, Akshita Rawat, to kindly present a floral bouquet as an expression of our sincere gratitude. We are delighted to welcome respected Sister Vilma. I request our Red House Captain, Sara Nadi, to kindly come forward and present a bouquet of flowers as a token of appreciation. We warmly welcome Honorable Sister Plasia. I would like to invite our Blue House Captain, Avni Mathur, to kindly present a bouquet of flowers as a token of our respect. It's our privilege to welcome our beloved Sister Nirmala. I now call upon our Shamrock House Captain, Laiba Khan, to kindly offer a flower bouquet as a heartfelt expression of our affection. We welcome dear Sister Elish. I now request our Daffodils House Captain, Tanuba Shadab, to kindly extend a floral welcome with our heartfelt gratitude and best wishes. Thank you,
sisters, for graciously accepting these small tokens of love and appreciation. Your unwearied dedication, kindness, and blessings mean more to us than words can ever express. May God continue to bless you always. It gives us immense pleasure to welcome Advocate Mr. Harsh Gupta, a distinguished alumnus of the batch of 1979. We are truly grateful for your gracious presence among us. A warm round of applause for our respected guests, please. With deep respect, I would like to invite our esteemed sister principal to extend an eco-friendly welcome to our respected guests as a token of our respect and gratitude. It's our privilege to warmly welcome Advocate Mrs. Fatima Shakeel, a distinguished alumna of batch 1999. We are truly delighted to have you with us today. A warm round of applause for our honored guest. Light is a symbol of knowledge, wisdom, hope, and the divine presence. It dispels the darkness of ignorance and illuminates the path of truth, faith, and righteousness. As we gather to celebrate this joyous occasion of Saint Anne Feast, let us begin by invoking God's choicest blessings to the ceremonial lighting of the lamp. With great respect, I humbly request our dear sisters, honored guests, and our beloved grandparents, Mr. Inderjeet Singh, grandfather of Gurbaz Kaur UKGA, Mrs. Shahana Begum, grandmother of Fatima Noor Khan, 12th B, to kindly come forward for the lamp lighting ceremony. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give a song to my heart, keep me singing. Give a song to my heart, I pray. Give a song to my heart, keep me singing. Keep me singing till the break of day. Thank you, respected sisters, honorable guests, and esteemed grandparents for making this beginning so prayerful and graceful. It is through prayer that we express our gratitude, strengthen our faith, and dedicate ourselves to God's loving care. As we continue this celebration, let us unite in prayer and place this special occasion under His guidance and blessings. To lead us into this sacred moment, I now invite the students of prayer service to lead us in the prayer. Today we are gathered here to celebrate the feast of Saint Anne and Grandparents' Day. Saint Anne, the mother of Blessed Virgin Mary and grandmother of Jesus, is remembered as the woman of deep faith, love and patience. Her life inspires us to cherish our families, honor our grandparents and place our trust in God. Today we honor your deep faith, our guiding light in every way. Saint Anne, we praise your holy name and thank you for your love each day. With patient heart and gentle grace, you trusted God through joy and faith. Inspire us now to walk in faith and follow God's eternal way. Now, let us begin the celebration by seeking God's blessing
place yourselves in the presence of God. O Heavenly Father, bless us as we celebrate the feast of Saint Anne. Fill our hearts with love, gratitude, and faith. Help us live in kindness, peace, and unity. Lord, hear our prayer. Loving and merciful Father, as we celebrate the feast of Saint Anne, we thank you for the precious gift of our dear sisters whose life reflect your love, compassion, and selfless service. Bless them with good health, strength, wisdom, and renewed energy each day. Fill their hearts with your peace and joy, and continue to strengthen them in their loving service to others. Lord, hear our prayer. God of love and peace, thank you for the wonderful gift of our grandparents. Their unconditional love, prayers, wisdom, and encouragement are a constant source of support and blessing in our lives. Bless them with good health, peace, joy, and renewed strength. May they be surrounded by love, respect, and unconditional love, and continue to enrich our lives with their kindness, faith, and loving presence. Lord, hear our prayers. God of wisdom, thank you for the precious gift of a teacher, for their caring hearts, dedication, and commitment, for guiding and inspiring us. Bless them with good health, strength, and joy. May they continue to be shining examples of faith and wisdom, inspiring every student to grow in knowledge, strength, and faith. Lord, hear our prayer. Lord, hear our prayer. Almighty God, thank you for the beautiful blessing of our school, where we learn, grow, and discover the talents you have given us. Bless our school with wisdom, peace, and unity. Help us to learn with dedication, treat one another with kindness and respect, and always choose what is right. May our school always be a place of faith, knowledge, love, and joyful learning. Lord, hear our prayer. Gracious God, thank you for the gift of education and the opportunity to learn each day. Fill our minds with wisdom, our hearts with humility, and our lives with purpose. Help us to see our talents wisely and always strive for excellence. May we grow in knowledge, character, and compassion, becoming responsible and kind individuals. Lord, hear our prayer. God of love and unity, thank you for the precious gifts of our families. Bless our homes with peace, love, and unity. Strengthen our faith and guide us to follow your ways with joyful and grateful hearts. Fill our hearts with love, kindness, and forgiveness. Help us to live in peace and togetherness, always supporting, caring, respecting one another. Saint Mary blesses your children, look on us with love and motherly care. Keep us pure now and always. Amen.
में पिघल जाएंगे, हो खुदा पे भी असर, तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मैं लौट के आऊं तेरी आंचल में छिप जाऊं, माँ तू है जहाँ मैं वही घर पाऊं। तेरी दुआओं ने ही संभाला हर मोड़ पे मुझे, माँ तेरे बिना मैं मुस्कुराना भी भूल जाऊं। ओ जन्म जन्म तो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म तो तू ही ज़मीं आसमां, ये खबर दिल में कहीं अब रहता है तो फिर मेरे दिल में तेरी बोलबाई तेरी माँ, मेरे दिल में तेरी बोलबाई तेरी माँ। तू है तो हिम्मत है, तू है तो जन्नत है, तू है तो रहमत है, तू है। जब जब कभी मैं लग जाती थी, तो आँख तेरी भी तो भर आती थी, एक छोटी सी बूंद से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे। आज भी कोई जो लगेगा, यार आती हो, यार आती हो तुम, आज भी मेरी आँख भरेगा, यार आती हो, यार आती हो आज पूरा साल हो गया आप दोनों को गए हुए। माँ आपने तो वादा किया था ना मुझे मुझे कभी अकेला ना छोड़ने का। आप ही तो सहारा थी मुझे अनाथ का। आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके कारण माँ। मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। माँ की सारी ममता तो आपने लुटाई थी मुझ पर। ये क्या मेम साहब, आपकी आंखों में खिलास? अरे नहीं, मैं कहाँ रो रही हूँ, वो तो बस यूं ही। अरे मेम साहब, कितने सालों से जानती हूँ आपको। माँ जी की तस्वीर के सामने रोज रोता हुआ देखती हूँ आपको। माँ बाप के लिए तो रोता हुआ मैंने बहुतों को देखा है मेम साहब, पर सास के लिए रोता हुआ आपको देखती हूँ। क्या हुआ बताओ ना मेरा बच्चा, क्या बात है? माँ स्कूल में वैलेंटाइंस डे सबके पास लाती हूँ, मीता दी कब आएंगी? मम्मा जो सितारा बन जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते क्या? नहीं पीहू, देखना वो आशीर्वाद देने जरूर आएंगी। सच में माँ? हाँ हाँ बिल्कुल सच। अब अच्छे बच्चों की तरह उठो, मम्मा का कहना मानो, अब खाना खाओ आंटी के साथ। अच्छा सरिता, मैं चलती हूँ, पीहू का ध्यान रखना। जी मेम साहब, ये भी कोई कहने की बात है मेरा। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। माय लॉर्ड, आज का केस बिल्कुल अलग है। यह है सावित्री देवी, उम्र लगभग 70 वर्ष, एक बूढ़ी लाचार माँ जिससे मेहनत मजदूरी
लड़के अकेले दम पर अपने बेटे को पाला, पोसा, पढ़ाया, उसके हर अरमानों को पूरा किया, पर आज उसी बेटे ने उन्हें सड़क पर अकेला छोड़ दिया। माय लॉर्ड, मैं एक वकील होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हूँ। इस माँ का दुख मुझसे नहीं देखा गया माय लॉर्ड। मैं इनके बेटे को अदालत में बुलाने की परमिशन चाहती हूँ। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर राजीव, कोर्ट को अपना परिचय दीजिए। माय लॉर्ड, मेरा नाम राजीव है। मैं सावित्री देवी का बेटा हूँ। मिस्टर राजीव, आपकी तरफ से वकील कौन है? आई एम वेल एजुकेटेड पर्सन। आई नो लॉ वेरी वेल। मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूँ। मुझे मेरा केस खुद लड़ने की इजाजत दी जाए। इजाजत दी जाती है। मिस्टर राजीव, क्या ये बात सच है कि आपने अपनी माँ को सड़क पर अकेला छोड़ दिया, ये जानते हुए भी कि उन्हें दिखाई नहीं देता? हाँ, छोड़ा था, लेकिन इसके पीछे भी वजह थी। कैसी वजह जो एक माँ को बेसहारा छोड़ने का अधिकार नहीं दे? तो क्या करूं माय लॉर्ड, तंग आ गया वो रोज रोज की खटपट से। बीवी की ना सुनूं तो परेशानी, माँ की ना सुनूं तो परेशानी। मेरी तो जिंदगी नरक बन गई है। शाम को हारा थका घर आता हूँ माय लॉर्ड, दो पल चैन के नहीं मिलते। आज इनकी हड्डियों में दर्द है तो कल शुगर बढ़ी है, तो परसों बीवी, दवाइयाँ, डॉक्टर के चक्कर, अकेला मैं क्या क्या देखूं। तंग आ गया हूँ माय लॉर्ड, रातों की नींद खत्म हो चुकी है और नहीं कर सकता मैं इनकी सेवा। तो क्या माँ आपकी जिम्मेदारी नहीं है मिस्टर राजीव? अरे तो मैंने कब जिम्मेदारी नहीं उठाई, अब और जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। शायद भूल गए आप मिस्टर, जब आप बीमार पड़ते थे तो यही माँ रात रात भर जागती थी। अरे तो कौन सा एहसान कर दिया, मैं भी तो अपनी जिम्मेदारी से कब पीछे हटा, लेकिन अब और नहीं कर सकता। मुझे भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। मैं कब तक उनके लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करता रहूंगा। मेरा भी परिवार है, मेरी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। दोनों बच्चे हैं माय लॉर्ड, उनकी पढ़ाई के खर्चे, मकान का किराया, बिजली का बिल, दूध, सब्जी, छोटी सी तनख्वाह है माय लॉर्ड, आती बाद में है, खर्च पहले हो जाती है। नहीं कर सकता मैं और इनकी सेवा। तो क्या माँ आपका परिवार नहीं है? अरे वकील साहब, आप क्यों नहीं समझते? क्यों बार बार आप घूम फिर कर एक ही बात पर आ जाते हैं? कह दिया ना, मैं और नहीं उठा सकता इनकी जिम्मेदारी। बेटा, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस 2 वक्त की रोटी और अपनेपन के 2 बोल। अरे माँ, तुम्हारी यही तो समस्या है, तुम कभी कुछ मांगती ही कहाँ हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी हर जरूरत पूरा करना मेरा काम है। जब तू छोटा था, तेरी एक खांसी पर मैं सारी सारी रात जागती थी। अरे तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, हर माँ बाप यही करते हैं। मैंने कभी एहसान नहीं जताया बेटा। अरे मुझसे और उम्मीद मत रखो, नहीं उठा सकता मैं और जिम्मेदारी। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ मेरे लाल, मुझे घर से मत निकाल। कहाँ जाऊंगी इस उम्र में? मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं करूंगी, कभी दवा नहीं मांगूंगी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी, बस घर के किसी कोने में पड़े रहने दे। अरे बंद करो ये ड्रामा, नहीं झेल सकता मैं और तुम्हें। माय लॉर्ड, आज इस अदालत में एक माँ नहीं रो रही, रो रहा है वो विश्वास जिस पर हर परिवार खड़ा होता है। माय लॉर्ड, अगर बच्चे अपने माँ बाप को इसी तरह बेघर करते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब कोई माँ बच्चों को जन्म नहीं देगी, कोई भी पिता बच्चों के ख्वाब नहीं देखेगा, कोई भी माँ ईश्वर के आगे आंचल फैला के बच्चों की भीख नहीं मांगेगी। समाज बिखर जाएगा योर ऑनर। जब माता पिता बच्चों को पालते हैं तो हिसाब नहीं रखते कि कितनी रातें जगे, लेकिन संतान एक एक पल का हिसाब करने लगी है योर ऑनर। जब समाज के बुजुर्गों का सम्मान खत्म हो जाता है तो केवल मकान बचते हैं योर ऑनर, घर नहीं। एक दिन ऐसा सैलाब आएगा योर ऑनर जिसमें परिवार, रिश्ते, सब कुछ बह जाएगा योर ऑनर। जब घरों से बुजुर्गों की दुआएं चली जाएं तो घर की रौनक, बरकत और खुशनसीबियां भी उनके साथ चली जाती हैं योर ऑनर। बुजुर्ग सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं होते, वो घर की जड़, समाज का आधार और आने वाली पीढ़ियों के मार्गदर्शक होते हैं। बस योर ऑनर, मैं यही कहना चाहूँगी।
इंसानियत और पारिवारिक मूल्यों का भी है। अदालत इस पर गंभीरता से विचार करेगी। अगली सुनवाई तक अदालत बर्खास्त की जाती है। आंखों में आंसू थे, लेकिन न जाने क्यों उन आंसुओं में मुझे आपका चेहरा दिखाई दे रहा था। माँ, लोग कहते हैं सास और बहू का रिश्ता कभी माँ बेटी जैसा नहीं हो सकता, लेकिन आपने तो इस रिश्ते की परिभाषा ही बदल दी थी। आपने कभी मुझे बहू नहीं माना, हमेशा अपनी बेटी कहा। माँ, आज आपकी बहुत याद आ रही है। बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, हर रोज दिल की कोई रग छेड़ जाते हो तुम। सभी से आपकी बेटी समझते हैं। हाँ, तो मैं हूँ ही उनकी बेटी। 24 घंटे बस नव्या नव्या, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। सारा प्यार आप इस नव्या पर लुटा दीजिए। अरे पागल, माना तो हाई कोर्ट का वकील है, पर उसे भी तो जज बनना है। माँ, घर और पढ़ाई दोनों नहीं संभलेंगी, मैं पढ़ाई छोड़ देती हूँ। अरे अगर बेटे के सपने पूरे ना कर सकूं तो कैसे माँ? घर मैं संभालूंगी, तू किताबें संभाल। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं। मम्मा पढ़ाई कर रही है ना? आज भी वो दादी के साथ खेलेगी। नहीं दादी, मुझे कहानी सुननी है। दादी बताओ ना, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? आज एक ऐसी राजकुमारी की कहानी जो बहुत पढ़ लिख कर जज बन गई। बिल्कुल नहीं मम्मा जैसी। हाँ, बिल्कुल तुम्हारी मम्मा जैसी। मेरी मम्मा सबसे अच्छी। दादी, आज टिफिन में क्या रखा है? तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे। I love you दादी। लव यू टू बेटा। दादी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तब क्या करोगी? मैं आपको अपने साथ रखूंगी, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अच्छा बाबा, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। दादी बताओ ना, मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? नहीं बेटा, जब तक सांस है तेरे साथ रहूंगी, और जब मैं नहीं होंगी तब भी मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। मुझे आशीर्वाद नहीं, मुझे अपनी दादी चाहिए। माँ, रिजल्ट आ गया, मैं जज बन गई। मुझे पता था भगवान एक दिन मेरी जरूर सुनेंगे, मेरी बेटी जरूर जज बनेगी। अरे वाह, आज तो घर में जश्न होना चाहिए। आखिर नव्या जज जो बन गई है। ये मेरी नहीं, माँ की जीत है। सही कहा तुमने। अगर माँ ने तुम्हारा हाथ ना थामा होता तो आज ये दिन नहीं आता। लीजिए माँ, सबसे पहले आप नव्या का खून खाने लगी। भगवान तुम्हें हमेशा न्याय के रास्ते पर चलाए बेटी। अरे भाई, माँ बेटी इमोशनल ड्रामा बंद कर रहा है। टाइम सेलिब्रेशन कर रहे हैं।
अमित बेटा। नहीं माँ, जिद नहीं। क्या विकास सिंह जी पति बोल रही हैं? जी मैं नव्या बोल रही हूँ। जी सब ठीक तो है ना? मैम, आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वेरी सॉरी मैम। आपके हस्बैंड और आपकी मदर इन लॉ दोनों की डेथ हो गई। नहीं माँ, विकास मुझे अकेला छोड़कर मत जाइए। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। जो सांझ ख्वाब देखते थे नैना, बिछड़ के आज रो दिए नैना। जो मिल के रात जागते थे नैना, सहर में पल के नीचते जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चले गए हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना, घुटन बंद हो गए। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है,
अपेक्षा की है। इसलिए अदालत मिस्टर राजीव को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन अपनी मां से ना मिलने की कड़ी सजा सुनाती है और साथ साथ मां सावित्री देवी को हिदायत देती है कि ऐसे बेटे की जीवन पर शक्ल न देखे। माफ कर दीजिए जज साहब, गलती हो गई, जिंदगी भर की सजा मत दीजिए। माँ जी, कानून आपको न्याय दे सकता है, लेकिन माँ के दिल का खालीपन नहीं भर सकता। यदि आपको स्वीकार हो तो आज से मेरा घर आपका घर है। जिस माँ का सहारा उसके बेटे ने छीन लिया, उसे मैं अपनी माँ का सम्मान देकर अपने घर ले जाना चाहती हूँ। अरे नहीं नहीं जज साहब, मैं कहाँ हूँ उस लायक। अरे नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ जैसी हैं। आज भगवान ने मुझसे मेरा बेटा छीनकर मुझे बेटी दे दी। नहीं माँ, आज मुझे मेरी माँ और मेरी बेटी को उसकी दादी वापस मिली है। ये कौन है मम्मा? ये तुम्हारी दादी है। सच में मम्मा? हाँ बेटा, चलो आपकी दादी को स्कूल लेकर चलते हैं ग्रैंड पेरेंट्स डे की सेलिब्रेशन पर। We dance, we sing
this gift has reminded us of the priceless gifts of grandparents. Their love reflects God's grace. Their wisdom lights our path, and their blessings remains our greatest strength. Let us always cherish, honor, love, and care for them. It is rightly said that the words have the power to inspire, motivate, and leave a lasting impact on our hearts. We are truly honored to invite our esteemed teacher, Mrs. Mamta Saxena, to witness the gathering on the joyful occasion of St. Anne Feast. We humbly request you, ma'am, to kindly take over the mic and bless us with your inspiring words. Good morning, everyone. अति सम्मान्य स्कूल मैनेजर सिस्टर लीलामा मैथ्यू, परम श्रद्धेय स्कूल प्रधानाचार्य सिस्टर जेसी सेलेस्टियन, सम्मान्य सिस्टर्स, आज के विशेष रूप से सम्मानित अतिथिगण, परम आदरणीय दादा दादी जी, नानी नाना जी, मेरे साथीगण एवं मेरे बहुत प्यारे बच्चों, जिसके सजदे में ईश्वर ने सर झुकाया है, आंचल में छिपने जिसके वो जमीन पर उतर आया है, वो मां स्वयं ईश्वर की एक गवाही है, कदमों में जिसके कायनात सारी समाई है। आज का ये पावन दिन उस महान आत्मा का जन्म दिवस है, जिसे हम बहुत श्रद्धा से, बहुत सम्मान से मदर सेंट एन कहते हैं, जो पवित्र मदर मैरी की माँ है और प्रभु यीशु की नानी माँ। वो माँ जिसने अपने आंचल में पूरी मानवता को समेट लिया, जिसके प्रेम की, दया की रोशनी से संसार जगमगा उठा। अगर आज आपके घर भी दया, करुणा, ममता, क्षमा, संवेदना से महकते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा विश्वास कीजिए, उसमें मदर सेंट एन की शिक्षाओं की सुगंध समाई है। साथ ही ये दिन उनकी याद में समर्पित है हमारे पूजनीय दादा दादी जी को, नाना नानी जी को। मेरे प्यारे बच्चों, आपका जन्म जिनके लिए ईश्वर का सबसे अनमोल उपहार था, जिन्होंने न जाने कितनी बनाई आपके जाने अनजाने अपने सर ले, आपसे बेपनाह मोहब्बत की, आप पर अपनी सारी ममता न्यौछावर कर दी। पर आज वही बुजुर्ग घर के अकेले, असहाय, निराश, वक्त की तस्वीर झकझोरने वाले हैं, जिन्होंने हम पर जिंदगी कुर्बान कर दी, उनकी जिंदगी को हमने अकेलेपन के हवाले कर दिया। जिन्होंने हमारे लिए रोज सपने देखे, उन आंखों में हमने उदासी, सूनापन, हम निराशा कर दी। हाँ, जो आंखों में केवल इंतजार है, वो निगाहें हर पल दरवाजे पर टिकी हैं, शायद कोई अब ना आ जाए। आज वहां शिकायतें कम और इंतजार ज्यादा है, और दिल में केवल एक कसक, क्या मांगी थी मैंने तुमसे जागीरें, फिर क्यों खड़ी की अपने और मेरे बीच दीवारें। मैंने तो सब कुछ अपना तुम पर वार दिया, जो हक था मेरा वो भी खुदा से तुम्हारे लिए मांग लिया। सोशल मीडिया और भौतिकवादी चकाचौंध में डूबी आज की पीढ़ी ने अपनों के बीच ऐसी दीवारें खड़ी कर दी, जिन्हें तोड़ना आसान नहीं है। महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी कि रिश्तों की नींव कमजोर पड़ गई। चांद छूने की लालसा में हम जड़ों से कट गए। डोंट इंटरफेयर इन माई लाइफ कहने वाली जनरेशन को नहीं पता कि लाइफ आप पर आपका केवल आपका अपना हक नहीं है, आप ऋणी हैं
कर्जदार हैं। माता पिता के, दादा दादी के, गुरुओं के, साथियों के, समाज के। सोचिए जरा, जब आप दुकानदार से एक छोटी सी भी चीज इस वादे के साथ घर लाते हैं कि आप कल इसकी कीमत चुकाएंगे, तो ना आपको चैन मिलता है, ना सुकून, जब तक वो आप कीमत चुका नहीं देते। फिर ये तो पूरे जन्म का कर्ज है। अगर आप सोचते हैं इस कर्ज को चुकाए बिना खुशियां खरीद लाएंगे, तो ये सोच ही भ्रामक है, हर गलतफहमी का शिकार है। जड़ों से कटे तो बिखरना निश्चित है। जो पाया है उसे लौटाना जरूरी है। सम्मान पाना चाहते हैं तो सम्मान देना जरूरी है। आज का दिन संकल्प दिवस है। मदर सेन के सपनों को साकार, सेन के सपनों को साकार करने का दिन, उनकी तरह समर्पण की राह पर चलने का दिन। माय डियर चिल्ड्रन, समर्पण अन्याय के सामने झुकने का नाम नहीं है, पर प्रेम पर बिटने का नाम समर्पण है। आज यहां से संकल्प लीजिए कि अपने घरों में दादा दादी को, नाना नानी को वही प्रेम और सम्मान देंगे जिसके वो वाकई हकदार हैं, अधिकारी हैं। पास बैठो तो पता चले वो कहानियां नहीं, अनुभव सुनाते हैं। दौलतमंद है वही जिनके घरों में बुजुर्ग मुस्कुराते हैं। थैंक यू। गॉड ब्लेस। As we continue this beautiful celebration, let us now experience the universal language of music. Music has a remarkable power to uplift our spirits, unites our hearts, and fill the atmosphere with joy. We now invite our talented school choir to present a melodious performance in honor of St. Anne's Feast. Let us welcome them with a huge round of applause. A faithful heart so kind and true.
Sister Jessie Sebastian to kindly address the gathering with her inspired words of wisdom and grace. Most respected Sister Elima Matthew, the manager of the school, the loving sisters, the esteemed guest of the day, Advocate Harsh Gupta and Advocate Fatima Shakil, and the invited guest of the day, our dear grandparents, dedicated staff and my dear students, a grace-filled morning to one and all. Today we gather in a spirit of thanksgiving to celebrate the feast of Saints Anne and Joachim, the parents of the Blessed Virgin Mary and the beloved grandparents of Jesus Christ. Their feast is not merely a remembrance of two holy persons. It is a celebration of every grandparent who, through quiet sacrifice and steadfast faith, becomes a living witness to God's enduring love. There is a beautiful African proverb says, when an old person dies, a library burns. I repeat, when an old person dies, a library burns. It reminds us that every grandparent is a treasure house of wisdom, experience, faith, and cherished memories. In a world that changed rapidly, grandparents remain the living bridge between our past and our future. They preserve our values, strengthen our families, and inspire us to walk in the ways of truth and goodness. The Word of God reminds us, stand up in the presence of the aged, show respect for the elderly, and revere your God. Notice how Scripture links reverence for God with respect for the elderly. To honor our grandparents is not merely an act of courtesy, it is an expression of our faith. Dear grandparents, your lives have been a silent sermon. You have taught us that love is expressed through sacrifice, that faith is strengthened through prayer, and that hope is sustained through perseverance. Many of us first learn to fold our hands in prayer while sitting beside our grandparents. We heard the first stories from you. We learned compassion by watching your care for others. The values you have planted in our hearts continue to bear fruit in our lives. Dear students, we live in an age of artificial intelligence, instant communication, and endless information. Yet, no search engine can replace the wisdom of a grandparent. No digital device can offer the warmth of their embrace. No technology can substitute for their blessings. Saints Anne and Joachim remind us that holiness often grows in an ordinary homes. By nurturing Mary in faith, humility, and obedience, they prepare the way for God's greatest gift to humanity. Their hidden lives change the history of salvation. They teach us that the greatest legacy we leave is not wealth or success, but faith that is handed on from one generation to the next. Pope Francis has often reminded us that a people that does not care for its grandparents is a people without a future. Let us never allow our grandparents to feel forgotten, lonely, or neglected. Instead, let us surround them with affection and gratitude. As we celebrate this blessed feast, let us thank God for the priceless gift of our grandparents. May our homes continue to be places where faith is lived, love is shared, and wisdom is treasured across generations. Through the intercession of Saints Anne and Joachim, may every family grow in faith, hope, and love. Happy Feast of Saint Anne and Joachim.
May God bless our grandparents, our families, and our school community. Thank you, and God bless you. We are deeply grateful for your blessings and constant support. With great honor and heartfelt gratitude, I now humbly invite our beloved grandparents to kindly come forward and share your valuable words with us. मैं हमारे आदरणीय दादा दादी एवं नाना नानी से सम्मानपूर्वक अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया आगे आएं और अपने जीवन के अनमोल अनुभवों तथा आशीर्वचन हम सबके साथ साझा करें। सबसे गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा रिश्ता इस इंस्टीट्यूट से जब से ये स्थापित हुआ है तब से, ये आप लोगों को बहुत कम मालूम होगा कि ये पहले को एजुकेशन था, जिसमें मेरे परिवार, मेरे और रिश्तेदार जो आज ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में और लंदन में, मेरे भाई नहीं पढ़े हैं जो आज दिल्ली में डॉक्टर है। मेरे खानदान का सारा बच्चा लड़कियां, आपको कोई एजुकेशन नहीं, लड़की नहीं पढ़े हैं। मेरी नवासी थी जिसका नाम था जर्नैल, यहीं पढ़ के गई है, जर्नैल प्रेम खान। मेरे पोतिए मेरी नवासी सभी नहीं पढ़े थे, लेकिन मेरे साथ एक क्रेजी हो गई। अब मेरी एक पोती जिसका किसी कारण में यहाँ एडमिशन नहीं हो सका, मैं गुजारिश करता हूँ कि किसी सूरत से मेरी बच्ची यहाँ एडमिशन, क्योंकि उसके पूरे खानदान की लड़कियाँ पहले तो लड़के भी पढ़ते थे, अब लड़के सारी यहीं पढ़ रही हैं और यहीं से बहुत कुछ आगे करके गए। बस और आप सबसे गुजारिश है। गुड मॉर्निंग, मैं फातिमा कमला फलक की दादी बोल रही हूँ। मैं स्कूल से बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा। किसी भी शहर में, किसी भी जगह ये प्रोग्राम नहीं होता दादी दादा के लिए। ये 2 साल दूसरा ये प्रोग्राम है, तो बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी जिस साल 12th का फर्स्ट ग्रुप निकला है, उसमें उसने 12th पास किया था। आप मेरी पोती है, नवासी है, सब यहीं पर है। सिस्टर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा ये प्रोग्राम किया और हम लोगों को यहाँ बुलाने का मौका दिया और अपना बोलने का। थैंक यू। आप सभी का मेरा तरफ से नमस्कार। मैं अर्चिता यादव कक्षा 6 सेक्शन बी की दादी हूँ और मैं भी एक छोटा सा स्कूल गाँव में चलाती हूँ अपना, लेकिन ये पढ़ाना एक बहुत अच्छी बात है कि मेरी नंदे भी सेंट मैरी मुरादाबाद से पढ़कर आज डॉक्टर बने हुए हैं। वास्तव में ये स्कूल जो है जहाँ जहाँ में चल रहे होंगे, बहुत बढ़िया शिक्षा दे रहे होंगे बच्चों को भी और आगे बढ़ाने के लिए भी। मैं आगरा से आया हूँ, जानने के मैं दादा हूँ और मेरे बेटे यहाँ नौकरी करते हैं, उन्हें मुझे बुलाया है आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम, मैं सहाना बेगम फातिमा जो है मैं उनकी दादी हूँ और मैं यहाँ पर बहुत पहले मेरे जितने बच्चे हैं लड़के थे कोई नहीं पता, मेरे सब बच्चों ने पढ़ा है। पोती पोता नवासी नवासा बेटी बेटा ने सबने माशाल्लाह वो यहाँ से बाहर साइड हैं, एक कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है मेरे बच्चे, वो सब बहुत अच्छे यहाँ से रहते हैं। ये बहुत अच्छा स्कूल है, जैसे हम शुरू में चला था जब से एडमिशन यहाँ मेरे बच्चों के हुए और मेरे पूरे खानदान के बच्चे जो हैं वो यहीं पढ़ते हैं और मेरे रास्ते है मेरे फातिमा का और मेरी दुआएं करना पाते हैं। आपको का ये पहला फर्स्ट स्कूल था लड़कियों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला था। सब यहाँ पे ये पहले तो वैसे हिंदी मीडियम भी थे, लेकिन ये स्कूल खुला बहुत अच्छा यहाँ का चला, रिस्पेक्ट और यहाँ की जितनी टीचर थे सब बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी मैम से ये पूछने आया था, उनका ये सारा जितना प्रोग्राम है इसको सारे बच्चों के मोबाइल पर डाल दें ताकि पेरेंट्स भी देखें, तो बहुत खुशी मिलेगी। बहुत बेहतरीन कार्यक्रम और सबसे बड़ी बात यह है
कि जो कुछ घरों में घटित हो रहा है पेरेंट्स के साथ या बेटियों के साथ, बेटियाँ चाहे बेटी हो या बहुएं हो, बेटियाँ हैं, जो घटित हो रहा है उसको आपने बहुत अच्छी तरह से और बहुत ही मार्मिक तरीके से उसको यहाँ प्रस्तुत किया और हमें देखने का मौका मिला। हमें हमारे दिमाग को झकझोर दिया। आपके जो 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 सीन थे, जो दृश्य थे, उनको देखकर हम सभी, अच्छा पेरेंट्स सभी हैं तो सारे पेरेंट्स 50% पेरेंट्स जो है वो इसी खराबी के शिकार हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे कुछ सीखें और इससे बच्चों को भी शिक्षा मिलेगी, बच्चे भी और बढ़ेंगे आगे और इससे और मतलब बहुत साथ मिलेगा। इसी के साथ आपको सभी को बहुत बहुत प्रार्थना करता हूँ और आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है। बहुत थैंक यू।